السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 17 ستمبر ہے۔ پیش دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات: یو پی، گجرات سمیت 10 ریاستوں کو سپریم کورٹ کا نوٹس، انسداد تبدیلی مذہب قانون پر جواب طلب۔ سیلاب کے بعد کشمیر میں خطرے کی گھنٹی، جولائی تک 79,000 سے زائد پانی سے پھیلنے والی بیماریاں رپورٹ۔ سی بی ایس ای کا بڑا قدم، بورڈ امتحانات کے لیے 75% حاضری اور 7 سخت شرائط لازمی۔ آغا روح اللہ کا سوال: سپریم کورٹ کے فیصلے سب پر یکساں کیوں نہیں؟ سچ بولنے والوں پر پی ایس اے کیوں؟ بہار اسمبلی الیکشن گرم، کانگریس پارٹی نے نئی الیکشن کمیٹی بنائی، شکیل احمد خان سمیت کئی مسلم نام شامل۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا بڑا اعلان: اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ پر اب بغیر سود کے قرض، ای ایم آئی کی میعاد بھی بڑھائی گئی۔ ریزرویشن ٹکٹ پر بھی تتکال ضابطہ، 1 اکتوبر سے صرف آدھار ویریفائڈ مسافر ہی پہلے 15 منٹ میں بکنگ کر سکیں گے۔ منی پور میں قیامت خیز طغیانی، ہزاروں گھر اور کھیت ڈوبے، پولٹری فارم بھی تباہ، ریلیف ٹیمیں سرگرم۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا دھماکہ، نیو یارک ٹائمز پر $15 ارب کا ہتک عزت کا مقدمہ، میرے خلاف جھوٹ کی مہم چلائی گئی۔ نیپال کی نئی حکومت مشکلات میں، وزیر اعظم کارکی کے خلاف نعرے بازی، تحریک کے رہنما کی وارننگ۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر ٹی وی اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ایک اہم معاملے کی سماعت کی، جس میں مختلف ریاستوں کے انسداد تبدیلی مذہب قوانین کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، گجرات، ہریانہ، جھارکھنڈ، راجستھان، چھتیس گڑھ اور کرناٹک سمیت 10 ریاستوں کو نوٹس بھیج کر جواب طلب کیا ہے۔ یہ نوٹس 4 ہفتوں کے اندر داخل کرنا ہوگا، جبکہ اگلی سماعت 6 ہفتے کے بعد ہوگی۔ عرضی دہندگان کا کہنا ہے کہ یہ قوانین آزادی مذہب کے خلاف ہے اور ان کا استعمال بالخصوص بین المذاہب شادیوں اور مذہبی تقریبات کو نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کچھ ریاستوں نے تو سزا کی مدت میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جیسے یو پی میں شادی کے ذریعے مذہب تبدیلی پر 20 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ عدالت نے فی الحال ان قوانین پر کوئی عبوری روک نہیں لگائی ہے، لیکن بحث ابھی جاری ہے۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ معاملہ ملکی مذہبی آزادی کے مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے۔ جموں کشمیر میں حالیہ سیلاب نے جہاں جان و مال کا بھاری نقصان پہنچایا ہے، وہیں اب پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف جولائی 2025 تک اس سال ٹائیفائڈ اور دیگر بیماریوں کے 69,000 سے زائد کیس درج ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے بعد پانی کا صاف پانی ملنا دشوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں مزید پھیل سکتی ہیں۔ ماہرین صحت نے مشورہ دیا ہے کہ لوگ ابلا ہوا پانی استعمال کریں اور احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ حکومت نے ریلیف کیمپوں میں طبی سہولتیں بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن زمینی سطح پر مشکلات اب بھی برقرار ہیں۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE نے 2026 کے 10ویں اور 12ویں بورڈ امتحانات کے لیے نئے ضابطے جاری کر دیے ہیں۔ اہم نکات میں شامل ہے: طلباء کو کم از کم 75% حاضری لازمی کرنی ہوگی، بورڈ امتحان میں دیے گئے مسلسل 2 سال تک مطالعہ اور انٹرنل اسسمنٹ لازمی ہوگا،
10वीं के तलबा सिर्फ 2 और 12वीं के तलबा एक इजाफी मजमून ले सकेंगे। 2026 से 10वीं के तलबा के लिए 2 बोर्ड इम्तिहान होंगे, पहला लाजमी और दूसरा नंबर बढ़ाने या पास होने के लिए। ये ज़ाब्ता तालीम के मेआर और इम्तिहानी शफाफियत को बेहतर बनाने के मकसद से लाए गए हैं। श्रीनगर से रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने वक्फ तरमीमी एक्ट और हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त रद्द अमल दिया है। उनका कहना है कि कवानीन सभी मज़ाहिब पर यकसा तौर पर लागू होने चाहिए, वरना एक तस्लीम को हवा देंगे। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि इख्तिलाफ रखने वाली आवाज़ों पर PSA के तहत दबाया जा रहा है और कहा गया कि अवाम की बुनियादी आइनी हुकूक को वापस दिलाने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने दफ़ा 370 की बहाली पर जोर दिया और कहा कि रियासती दर्जे की बहाली की बातें महज दिखावा है। कहीं कि कोई सेफ नहीं है, MLA हो, MP हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखें कि दूसरों के ऊपर PSA लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें और ये मुसीबत एक रोज हमारे सर पे भी आएगी। या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के खिलाफ लड़े और इस PSA रिजीम के खिलाफ लड़े। आज एक MLA पे, कल एक आम शहरी पे, परसों MP पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है और ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके खिलाफ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के जरिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के जरिए, इस रिजीम के खिलाफ लड़े, तो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मैं आपके जरिए उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वो इस वक्त खामोश रहे तो उन पे भी ये बारी आएगी। अगर वो ना हुए तो हम सभी को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। कहीं कि कोई सेफ नहीं है, MLA हो, MP हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखें कि दूसरों के ऊपर PSA लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें और ये मुसीबत एक रोज हमारे सर पे भी आएगी। या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के खिलाफ लड़े और इस PSA रिजीम के खिलाफ लड़े। आज एक MLA पे, कल एक आम शहरी पे, परसों MP पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है और ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके खिलाफ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के जरिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के जरिए, इस रिजीम के खिलाफ लड़े, तो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मैं आपके जरिए उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वो इस वक्त खामोश रहे तो उन पे भी ये बारी आएगी। अगर वो ना हुए तो हम सभी को बिहार के असेंबली इंतखाबात करीब हैं और कांग्रेस ने अपनी नई रियासती इलेक्शन कमीशन कमेटी तश्कील दे दी है और इस कमेटी में 29 अरकान शामिल है, जिनमें कई मुस्लिम रहनुमा भी शामिल है। पार्टी का कहना है कि ये कमेटी फौरी असर से काम शुरू करेगी और कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम को मजबूत बनाएगी। जल्द ही इंडिया ब्लॉक की दीगर जमातों के साथ सीटों की तकसीम पर भी फैसला मुतवक्किल है। नीतीश हुकूमत ने तलबा के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिए जाने वाले कर्ज पर कोई सूद नहीं लगाएगा। पहले आम तलबा को 4% और खवातीन या माजूर को तलबा को 1% सूद देना पड़ता था। अब यह कर्ज पूरी तरह सूद से पाक हो गया है। साथ ही किस्तों की अदायगी की मुद्दत भी बढ़ा दी गई है ताकि तलबा पर बोझ कम हो। सियासी माहिरीन का ऐलान है कि इंतखाबात से पहले का ये बड़ा इंतखाबी दाव करार दे रहे हैं।
हिंदुस्तानी रेलवे ने टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली को रोकने के लिए नया ज़ाब्ता नाफिज करने का फैसला किया है। यकूम अक्टूबर से रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ वही मुसाफिर टिकट बुकिंग कर सकेंगे जिनका आधार वेरिफिकेशन पहले से हो चुका है। यह ज़ाब्ता सिर्फ तत्काल टिकट पर लागू था, अब आम रिजर्वेशन पर भी लागू होगा। मकसद ये है कि असली मुसाफिरों को सहूलत मिले और जाली एजेंडों की धांधली बंद हो। मणिपुर में मूसलाधार बारिश के बाद ईरेल नदी में तूफानी आ गई है। इम्फाल ईस्ट जिला में नदी का पानी बांध तोड़कर गांव में घुस गया है, जिससे 4000 से ज्यादा घर मुतासिर हुए। खेतों में खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गई, पोल्ट्री फार्म डूब गए और हजारों मवेशी हलाक हो गए। मकामी इंतजामिया ने फौरी रिलीफ का काम शुरू कर दिया है और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी जारी व सारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ $15 बिलियन का हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया है। उनका इल्ज़ाम है कि अखबार बरसों से उनके खिलाफ झूठी खबरें शाये करता रहा। खास तौर पर जाफरी केस के हवाले से ट्रंप ने अखबार को लिटरल लेफ्ट का तर्जमान करार देते हुए कहा कि मीडिया को जवाबदेह बनना ज़रूरी है। यह मुकदमा फ्लोरिडा में दायर किया गया है। नेपाल में नई अबूरी हुकूमत वज़ीर आज़म सुशीला कार्की के खिलाफ अवामी नाराज़गी बढ़ रही है। तहरीक के रहनुमा सुदन गोरंगी ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने तहरीक के वादे पूरे न किए तो वो कार्की को कुर्सी से हटाने में देर नहीं करेंगे। काठमांडू में मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया और इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। इधर हुकूमत ने आज काबीना में तोसी का ऐलान भी किया, लेकिन सिर्फ 3 वज़ीरों को हल्फ दिलाया गया है, जिस पर भी एतराज़ जताया जा रहा है। फ़िक्र नदर की गुज़िश्ता पेशकश में हारिस रहमानी, आदिल आलम, मोहम्मद नसीम अहमद नारी दरभंगा साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।